डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। सो लेट अस first of all talk about that what we will discuss in this chapter। भी हम इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस स्टूडेंट्स, we will discuss, first of all we will discuss about the meaning of goodwill, that what do you mean by goodwill, and definitions of goodwill, that how we can define goodwill. Secondly, we will discuss about the various features of goodwill, that what are the various features of goodwill, and then we will discuss about the factors affecting goodwill and various methods of valuation of goodwill. So let us first of all talk about the meaning of goodwill, that what do you mean by goodwill, भी goodwill से हमारा क्या अभिप्राय है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है that goodwill is termed as the reputation of the business. In other words, we can say that goodwill is the name and fame of the business. So when we express the reputation of the business, when we express the name and fame of the business in monetary value, it is called goodwill। मतलब जब हम फर्म की रेपुटेशन को, जब हम फर्म की नेम एंड फेम को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जब हम इसको मनी वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं, देन इट इज कॉल्ड गुडविल। हम इसको क्या कहते हैं? गुडविल। इन अदर वर्ड्स, सम ऑफ द स्कॉलर्स आल्सो से दैट गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस विच द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन फ्यूचर। मतलब जो एक्स्ट्रा अर्निंग बिजनेस फ्यूचर में अर्न करने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम गुडविल कहते हैं। एंड देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स विच से दैट गुडविल इज समथिंग which arises due to the reputation of the business, due to the business connections, and due to the type of business which a firm does। इसके ऊपर फर्म की गुडविल डिपेंड करेगी। सो लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ गुडविल। सो फर्स्ट डेफिनेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, that the term goodwill is generally used to denote the benefit arising from connections and reputation। so वही बात भी, फर्म जो बेनिफिट लेती है बिजनेस के कनेक्शंस के कारण या बिजनेस की रेपुटेशंस के कारण, अगर हम उस बेनिफिट्स को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, देन इट बिकम्स गुडविल। तो वो क्या बन जाती है? गुडविल बन जाती है। सिमिलरली, another definition given by Spicer and Pegler, that goodwill may be said to be that element arising from reputation, connections, or other advantages possessed by the business which enables it to earn greater high income। मतलब भी वही जो मैंने पहले बताया था, that goodwill is something concerned with the extra profits that a business will earn in future। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस को फ्यूचर में होने वाला है, सो उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट बिकम्स गुडविल। सो इन सिंपल वर्ड्स स्टूडेंट्स, गुडविल क्या है? इट इज द monetary value of the name and fame of the business, और इट इज द monetary value भी जब हम फर्म की रेपुटेशन को मनी वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं, दिस बिकम्स गुडविल। एंड इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेटर हाई इनकम which a firm will earn in future, or which arises due to the business connections of the firm, or which arises due to the name and fame and reputation of the firm। So I think you are clear about the meaning of goodwill। goodwill से हमारा क्या अभिप्राय है। Now let us discuss about the various features of goodwill। So students, जहाँ हम features की बात करते हैं, that goodwill is an intangible asset। मतलब goodwill जो है, जैसे आपको मालूम है, हमारे पास दो तरह के assets होते हैं। One is tangible assets and other is intangible assets। Intangible asset means वो assets जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, but those assets have
certain value to the business. So इन asset की business के लिए certain value है. So those assets are called intangible assets. So goodwill हमारा intangible asset है. Similarly, the second feature of goodwill is that it is liable to constant fluctuations. मतलब business की goodwill हमेशा एक जैसी नहीं रहती. बिजनेस की गुडविल फ्लक्चुएट करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस सिचुएशन ऑफ ए फर्म. सिमिलरली इट इज वैल्यूएबल ओनली एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. मतलब गुडविल की वैल्यू हम तभी कैलकुलेट करते हैं व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. मतलब गुडविल अदरवाइज गुडविल तो है हमारी, लेकिन उसकी वैल्यू हम कब कैलकुलेट करेंगे? व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. सिमिलरली इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू. मतलब अब हमारी रेपुटेशन या हमारी बिजनेस कनेक्शंस या हमारी नेम एंड फेम की मॉनेटरी वैल्यू क्या है? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट मॉनेटरी वैल्यू. सो इट में बी परचेज और नॉन परचेज. गुडविल को हम खरीद भी सकते हैं और गुडविल नॉन परचेज भी हो सकती है. That is the self-generated goodwill based upon the future profits of the business, based upon the connections of a firm with the outside world. So आइए अब हम बात करते हैं the various factors affecting goodwill. वो कौन कौन से factors हैं जो goodwill को affect करते हैं? So there are various factors which affects goodwill. The very first factor is favorable location of the business. मतलब आपका business किस location पे situated है. Naturally अगर आपका business जो है that is situated at a very reputed place, आपका business जो है that is situated in the middle of a business center, naturally आपके business की goodwill ज़्यादा होगी. Similarly it will also depend upon the efficiency of management. भी आपका business जो भी firm के partners manage कर रहे हैं, how efficiently they are managing the business, that will determine the value of your goodwill. Similarly, the type of goods which you are trading, the type of goods which you are manufacturing, that will also determine the value of goodwill. भी आपके बिजनेस की गुडविल जो है वो कितनी होगी. Similarly, what is the monopolistic and other rights? भी आपके बिजनेस के पास मोनोपली या मोनोपोलिस्टिक राइट्स किस प्रकार के हैं? सपोज अगर आपका बिजनेस है और आपकी पूरी मार्केट में मोनोपोली है, नेचुरली यू विल हैव ए हायर गुडविल क्योंकि आप ही पूरी मार्केट को कैप्चर किए हुए हो. सिमिलरली रिस्क इन्वॉल्व, भी आपके बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है? कम रिस्क इन्वॉल्व होगा तो बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा तो बिजनेस की गुडविल कम होगी. सिमिलरली द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, नेचुरली अगर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट अपवर्ड होगा then obviously the goodwill of your business will be higher. And similarly capital required, आपको कितनी कैपिटल की जरूरत है? अगर आपको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत है then the goodwill of your business will be lesser. बट अगर आपको कम कैपिटल की जरूरत है, इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और आपके गुडविल की वैल्यू जो ज़्यादा होगी. एंड फ्यूचर कंपटीशन, फ्यूचर में कितना कंपटीशन फर्म को फेस करना पड़ेगा, दैट विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ योर गुडविल. सो आइए अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, दैट इज व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो जब हम बात करते हैं द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वी हैव वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो सबसे पहले हम जिस मेथड की बात करेंगे, let us talk about first of all the various method. So कौन-कौन से methods हैं? The first method to make valuation of goodwill is the average profit method. The second method which a firm use for the valuation of goodwill is the super profit method. Third method is the capitalization method. Fourth method is the annuity method. And fifth method is the purchase consideration method. So एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन के 5 मेथड्स हैं. सबसे पहले जिस मेथड को हम यूज कर सकते हैं दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड. मतलब गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे बेस्ड अपॉन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म. सिमिलरली सेकंड मेथड दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड. गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी बेस्ड अपॉन द सुपर प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जितना फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसके ऊपर गुडविल की वैल्यूएशन बेस्ड होगी. सिमिलरली द कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब आपकी कैपिटल के ऊपर बेस्ड होगा द वैल्यू ऑफ योर गुडविल.
एंड एन्युटी मेथड एज वेल एज द परचेज कंसीडरेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं द पहले मेथड की, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू, हमारी गुडविल की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब जितना आपका एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई करोगे इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। अब सपोज आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 10,000 रुपया है, और गुडविल जो है, गुडविल इज द परचेज ऑफ 5 ईयर्स। तो इसका मतलब आपकी गुडविल कितनी हुई, एवरेज प्रॉफिट 10,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने कितने लिए हैं, 5 साल। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 50,000। तो यहाँ पे आपकी गुडविल किसके बराबर होगी, दैट विल बी 50,000 रुपए के। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर जरूरी नहीं है 5 साल की, इट में बी 2 ईयर्स परचेज, इट में बी 3 ईयर्स परचेज, इट में बी 4 ईयर्स परचेज, इट में बी 7 ईयर्स परचेज। सो आपकी गुडविल डिपेंड करेगी दो चीजों के ऊपर, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, और नंबर 2 द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। और एक बात स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखनी है, दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अगर हमारे पास कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उसको हम एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस करेंगे। सपोज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, इसको हम डिडक्ट करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। सिमिलरली एनी एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक। अगर हमें कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, उसको हम ऐड बैक करेंगे एवरेज प्रॉफिट में। सो इसमें जैसे लॉस ऑन लॉस ड्यू टू फायर, सिमिलरली लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हमारे एबनॉर्मल लॉसेस हैं, दैट शुड बी एडेड बैक। तो इसको हम प्लस करेंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको हम माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, जस्ट लाइक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दैट शुड आल्सो बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। मतलब अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारे प्रॉफिट में, उसको भी हम डिडक्ट करेंगे while calculating the average profit. So once again हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यू है, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और ये चीज ध्यान रखने वाली है दैट जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है दैट हैज टू बी डिडक्टेड, कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस है दैट हैज टू बी एडेड बैक, एंड कोई भी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, अगेन दैट हैज टू बी डिडक्टेड। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दिस मेथड इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट्स जैसे कि इसके नाम से ही आपको क्लियर है, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर का मतलब होता है द एक्स्ट्रा प्रॉफिट विच ए फर्म विल अर्न। जैसे हमने डेफिनेशन में भी बताया दैट द गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू बेस्ड अपॉन द सुपर प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट फर्म अर्न करेगी, उसके ऊपर फर्म की गुडविल डिपेंड करेगी। सो सुपर प्रॉफिट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। सपोज एक फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 रुपया है, लेकिन फर्म 70,000 प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 है, एक्चुअल प्रॉफिट 70,000 है, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है, 20,000 रुपया। सो दैट 20,000 इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू, जो गुडविल की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगी गुडविल की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब जितने सालों की परचेज है। नो लेट अस टेक एन एग्जांपल, भी हमारा सुपर प्रॉफिट है 20,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3 साल की। तो इसका मतलब हो गया द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 20,000, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई कितने सालों की परचेज है, 3 सालों की, मल्टीप्लाइड बाई 3। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 60,000। यहाँ पे फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी, 60,000 रुपया। तो आइए हम आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे बताया गया है, सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा,
दैट विल बी योर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस करेंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट फर्म अर्न करेगी दैट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। तो फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल प्रॉफिट तो स्टूडेंट्स हमें गिवन होगा, मतलब वट एवर प्रॉफिट द फर्म इज अर्निंग दैट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होगा, दैट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो चीजें चाहिए, वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अनदर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ सपोज हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है वो 1 लाख रुपया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो इसका मतलब फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10% दैट विल बी इक्वल टू 10,000। सो यू विल कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट एंड आवर सुपर प्रॉफिट विल बी, यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 आ गया और मान लो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 15,000। तो यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट 15,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे 5,000 रुपया। एंड सपोज द गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 ईयर परचेज। तो यहाँ पे गुडविल कितनी होगी, सुपर प्रॉफिट 5,000 आया मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 15,000। तो यहाँ पे जो फर्म की गुडविल आएगी वो 15,000 रुपये आएगी बेस्ड अपॉन द सुपर प्रॉफिट मेथड। और हम सुपर प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करेंगे। और अब यहाँ पे देखो एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, दैट कैपिटल एम्प्लॉयड, हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना पैसा फर्म ने, फर्म के पार्टनर ने बिजनेस में एम्प्लॉय किया हुआ है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। नेचुरली जो भी पैसा पार्टनर्स लगाएंगे that will be invested in your fixed assets and your current assets. So capital employed will be equal to fixed assets plus current assets minus outside liabilities. जितनी भी आपकी outside liabilities हैं उसको हम डिडक्ट कर देंगे to calculate the capital employed। मतलब यहाँ पे outside liabilities से मतलब होगा हमारा current liabilities से whatever current liabilities are there that will be deducted to calculate the capital employed by the business। बिजनेस में कितनी कैपिटल को एम्प्लॉय, फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो फ्रेंड्स हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी दो तरह की हो सकती है, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहला हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया, देन सेकंड मेथड किया सुपर प्रॉफिट मेथड, and the third method which we can use is called capitalization method। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन मेथड्स में हम दो तरह के मेथड्स को यूज कर सकते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करते हैं वी हैव टू मेथड्स, वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड अदर इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू अगर हमने गुडविल निकालनी है तो गुडविल फर्म की किसके बराबर होगी, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू, किस चीज के बराबर होगी, दैट विल बी कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दैट गुडविल, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए कैपिटलाइज प्रॉफिट और दूसरा क्या चाहिए, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइज प्रॉफिट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज प्रॉफिट को, और हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट विल बी आवर एवरेज प्रॉफिट्स, जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स होंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम विभाजित करेंगे किसके साथ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, और मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 100। अब सपोज हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो यहाँ पे कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना होगा, दैट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो कैपिटलाइज प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख रुपया। एंड सपोज हमारे पास कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया 5 लाख रुपया और हमारी जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 4 लाख रुपया है।
तो गुडविल फर्म की कितनी होगी, दैट विल बी कैपिटलाइज प्रॉफिट 5 लाख, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख और फर्म की गुडविल कितनी होगी, दैट विल बी रुपीज 1 लाख। 5 लाख माइनस 4 लाख। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म विल बी फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो पहला जो मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड में हम यूज कर सकते हैं, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड to calculate the value of a goodwill, and the second method which we can use for calculation of goodwill, that is the super profit method। और अगर हम super profit method use करते हैं and the goodwill will be equal to super profit divided by normal rate of return multiplied by 100। so suppose super profit के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, फर्म का super profit किसके बराबर होगा, that will be the actual profit minus normal profit of the firm। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल का यहाँ पे किसके बराबर होगी, सुपर प्रॉफिट मेथड में, दैट इज द सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी सपोज फर्म का सुपर प्रॉफिट जो है वो है 50,000 रुपया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो यहाँ पे फर्म की गुडविल कितनी होगी, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5 लाख। सो द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 5 लाख। सो आई थिंक यू आर क्लियर। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम दो तरह के मेथड यूज करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं तो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमें पता है दैट कैपिटलाइज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये तो आपको मालूम ही है, इस सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, फर्म का सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होगा, दैट विल बी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो आइए अब हम अगले मेथड की बात करते हैं, दिस इज द एन्युटी मेथड। सो स्टूडेंट्स, another method which we can use is called the annuity method। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो that goodwill is equal to super profit multiplied by annuity value। तो यहाँ पे goodwill किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, super profit multiplied by annuity value। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, सपोज फर्म की जो सुपर प्रॉफिट है दैट इज ₹4,000 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल के साथ जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज गिवन that is 0.282012। तो इसका मतलब क्या हुआ, that the value of goodwill here will be equal to that 4,000 multiplied by 1 by 0.282012। इसको हम दूसरी तरह भी निकाल सकते हैं, that is 4,000 इसको 1 by इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम, that is प्रेजेंट वैल्यू जैसे हमने दिया हुआ है दैट इज 0.282012। तो यहाँ पे हमारी जो गुडविल होगी फर्म की दैट विल बी 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0.282012 इज इक्वल टू 14,184। मतलब यहाँ पे फर्म की गुडविल जो है वो डिपेंड करेगी द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के ऊपर भी, हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है। क्वेश्चन में आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया होगा, आपको सिंपली क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है एन्युटी वैल्यू के साथ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एंड द लास्ट मेथड व्हिच वी कैन यूज इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन मेथड। भी हमने सपोज अगर फर्म ने कोई बिजनेस को परचेज किया है या कुछ नेट एसेट्स को परचेज किया है, तो फर्म ने कितने पैसे पे किए हैं और उन नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू, हमारी गुडविल की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट विल बी परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट। अभी सपोज आपने कोई बिजनेस खरीदा है 5 लाख रुपए में, लेकिन आपके पास जो नेट एसेट्स आए हैं वो हैं 4.5 लाख रुपए के। तो इसका मतलब पैसे तो आपने परचेज कंसीडरेशन के 5 लाख रुपया पे किया, लेकिन आपके नेट एसेट कितने आए, 4.5 लाख रुपए के। तो इसका मतलब द एक्स्ट्रा 50,000 विच द फर्म इज पेइंग इज कॉल्ड गुडविल। जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपया फर्म पे कर रही है वो किस चीज का पे कर रही है, गुडविल का। तो यहाँ पे गुडविल विल बी इक्वल टू योर परचेज कंसीडरेशन माइनस द
परचेज कंसीडरेशन से माइनस कर देंगे नेट एसेट्स। सो फर्म के नेट एसेट्स जो हैं वो कैसे आएंगे, टोटल एसेट्स में से हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को निकाल देंगे, वी विल कैलकुलेट द नेट एसेट्स एंड द गुडविल विल बी इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। सो मेरा ख्याल है अभी आपको सभी मेथड्स के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में भी वैसे हम दो तरह के मेथड यूज कर सकते हैं, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। सिमिलरली नंबर 2 जिस मेथड को हम यूज कर सकते हैं दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड, और गुडविल किसके बराबर होगी, दैट विल बी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई divided by rate of return multiplied by 100. Similarly, we can also use capitalization method. तो यहाँ पे भी दो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे we can calculate goodwill. goodwill किसके बराबर होगी हमारी, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे गुडविल किसके बराबर होगी, दैट विल बी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कर देंगे, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आप गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो जैसे कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सिमिलरली वी कैन आल्सो यूज कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, super profit divided by normal rate of return. Another method that is the annuity method. So goodwill is equal to super profit multiplied by annual value. और लास्ट में जो मेथड यूज कर सकते हैं दैट इज द परचेज कंसीडरेशन मेथड एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल हियर विल बी इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज कंसर्न विद द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई देयर इज ए नीड टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, भी हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं। सो देखो आप जैसे आप देख पा रहे हो दैट इन केस ऑफ सोल ट्रेडर गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत हमें कब पड़ती है, दैट व्हेन द बिजनेस इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, जब हमने बिजनेस को बेचना है। जैसे मैंने पहले भी बताया दैट गुडविल इज वैल्यूड व्हेन द बिजनेस इज डिस्पोज्ड ऑफ। सिमिलरली अगर समवन इज एडमिटेड टू ए पार्टनर एज पार्टनर, अगर सोल ट्रेडरशिप में अगर किसी को आप पार्टनर बना लेते हो देन यू हैव टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। या फिर फॉर असेसिंग द वेल्थ टैक्स, अगर हमें वेल्थ टैक्स को असेस करना है अगेन यू हैव टू वैल्यू गुडविल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों है दोस्तों, इसलिए जरूरत है व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर फर्म में हम एडमिट करते हैं तो वो कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल भी लेके आएगा। सो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सिमिलरली व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है यू हैव टू वैल्यूएट गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को आपको फर्म की गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। सिमिलरली व्हेन ए पार्टनर डाइज, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है अगेन यू हैव टू वैल्यूएट गुडविल, उसके लिए लीगल हेयर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसकी गुडविल की पेमेंट करनी पड़ेगी। सिमिलरली व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ गया अगेन व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वहां पे भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगी किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा और किसी पार्टनर को लॉस होगा। तो जिस पार्टनर को लॉस हो रहा है हम उसे गुडविल की शेप में कंपनसेट करेंगे। एंड देन अगेन व्हेन द गुडविल इज वैल्यूड, और गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत हमें कब है, व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड, फर्म के बिजनेस को खत्म किया जाता है जब, again we have to make valuation of goodwill. So I think you are clear about that what are the cases when the goodwill are to be valued, कि जब हम goodwill को valuation करनी पड़ेगी। So students, I think you are clear about the meaning of goodwill, the various features of goodwill, the various methods of valuation of goodwill, and you are clear about the केसेस और why there is a need of valuation of goodwill, भी हमें goodwill की valuation की जरूरत कब पड़ती है। So I think you will be clear about all those things and then जल्द ही आपके पास एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।